Hello dear student, this is Praveen Dubey, your teacher from Drishti Judiciary. Today we discussed about a very famous case, K.M. Nanavati versus State of Maharashtra. Maybe you all know about this case through the picture. One movie had already published in a cinema hall, Rustam by the Akshay Kumar. Overall, it is not important, but K.M. Nanavati is very important case in respect of grave and sudden provocation murder under section 300, exception number 1. So before the knowing about the legal provisions, some story behind the K.M. Nanavati भी जानना जरूरी है हम लोगों को, थोड़ा सा जान जाते हैं. K.M. Nanavati was a Navy officer, and the case detail is here. K.M. Nanavati versus State of Maharashtra, date of judgment pronouncement 24th November 1961 through the Supreme Court of India, and bench were constituted by Justice K. Subba Rao, S. K. Das and Raghubar Dayal, Honorable Justice. Citation is 1962 AIR 605. It is sufficient to know about this citation. Detail में आपको citation जानने की जरूरत नहीं है. And the brief history of this case is here. Background: Kawas Manik Shah Nanavati was a naval officer married by Salvia, with whom he had 3 children. K.M. Nanavati was a naval officer married by Salvia. On 27th April 1959, Salvia confesses to Nanavati about her extramarital affair with Prem Ahuja, a family friend and businessman. It is not very much important thing, but extramarital affair with a Prem Ahuja is a crucial reason for this murder. Enraged by the revelation, Nanavati confronted Ahuja and shot him dead with a semi-automatic revolver before surrendering to the police. It is the simplest way to know what had happened that particular time, but the legal provision, but the legal issues are so different, and it can be understood by this thing. The jury acquitted Nanavati. Firstly, we have to know, jury acquitted Nanavati by a majority of 8.1, finding him not guilty of murder. Now, Nanavati was a naval officer. He is a very prudent man. He was a very prudent man, educated man. He know very well the respect of law. So no one can say that he is an immature person, or he was a idiot man who don't know about the law, or common sense in respect of law. So Nanavati, when knows that his wife's relation, extramarital relation with his friend Prem Ahuja, he lose his you can say control in respect of, you can say, pardoning the all situation. बट जो स्टोरी है, जो इन सिंपल वे में हम जानते हैं कि ज्यूरी सोशल जो फेनोमेनन है हमारे समाज का, ज्यूरी नानावटी को एक तरह से माफ करने की बात करती है, और सीआरपीसी 307 के तहत नानावटी को पार्डनिंग का मैटर वहां पे उठाया जाता है और ट्रायल कोर्ट उसे पार्डन भी करती है. It is not very much important here. Most important thing ये है
कि क्या नानावटी ने सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन में वो काम किया था। यही मुद्दा इस केस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के इस फैसले को कैसे ओवररूल्ड किया है आप देखेंगे। पहले द ज्यूरी एक्यूटेड नानावटी बाय ए मेजॉरिटी फाइंडिंग हिम नॉट गिल्टी of murder. However, the session judge referred the case to the Bombay High Court under section 307 of CRPC. Bombay High Court ruled that the act was premeditated murder and overturned the jury's decision. In this case, very interesting fact, in this case, Ram Jethmalani was a advocate from defense, and by this case he became a very famous lawyer in India. Maybe आप सब लोग जानते होंगे राम जेठमलानी जी को. Leading to jury decision, leading to KM Nanavati filing a special leave petition under Article 136 to the Supreme Court of India, and Supreme Court of India discuss the 3 points specifically in this case. What legal provisions are involved in this case? First, section 300 of IPC means basically not only 300 exception number 1, section 302 कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर में जो पनिशमेंट मिलनी चाहिए उसके रेस्पेक्ट में डिस्कशन हुआ, इसलिए सेक्शन 302 की भी बात आ जाती है जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. एंड सेक्शन 307 CRPC पार्डनिंग पावर बाय कोर्ट. सो हियर इज वेरी नेसेसरी अबाउट द एक्सेप्शन नंबर 1 नो for the achieving a plea under section 300 exception number 1, accused must be show that when he commit a crime he deprived from self control. वह अपने आत्मनियंत्रण के बाहर हो गया था. कुछ इस तरह की बातें हुई, कुछ इस तरह के सर्कमस्टेंस थे, कुछ हैस्टी वर्ड्स सुनने को मिले या कुछ ऐसे दृश्य देखने को मिले जिससे वो अपने विवेक को खो चुका. वो प्रीमीडिएशन के केस में नहीं था, यानी कि वेल सेटल्ड ब्रेन से वो काम नहीं कर रहा था, वो सेल्फ कंट्रोल खो चुका था. वो इस बात को समझने में कहीं न कहीं मिस कर रहा था कि वो जो कर रहा है वो उचित नहीं है. बट उसका इंटेंशन क्लियर था. इस मामले में यह देखा जाता है कि इंटेंशन क्लियर है कि इंटेंशन है मर्डर करने का, यानी कि किसी व्यक्ति का कल्पेबल होमिसाइड करने का. कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, बोथ आर different thing, but the similar thing is culpable homicide must be done in case of murder or culpable homicide too. तो एक्सेप्शन नंबर 1 of 300 1 of 300 क्या कहता है? वो यही कहता है कि यदि कोई व्यक्ति ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में कोई अपराध कर रहा है, यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में सेल्फ कंट्रोल को खो दे रहा है, तो वो मर्डर के चार्ज में नहीं आता है. ही विल बी लाइबल फॉर द कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर. बट द सेकंड थिंग ये भी है कि आपको ये भी देखना होगा कि अंडर इमीडिएट इंपल्शन रहा उस डिप्राइवेशन ऑफ सेल्फ कंट्रोल का. डिप्राइवेशन ऑफ सेल्फ कंट्रोल का अगर तत्कालिक प्रभाव यह है कि वो उस प्रकोपन से, उस प्रोवोकेशन से तुरंत प्रभावित हुआ, तत्काल प्रभावित हुआ, ऐसी परिस्थितियां थी कि उसके पास प्री मीडिएशन का समय नहीं था,
ये विचार करने का वक्त नहीं था कि वो अपराध करे या ना करे। और जो तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ये इस मामले में लाने के लिए, एक्सेप्शन नंबर 1 में लाने के लिए, वो ये है कि देयर मस्ट नॉट हैव बीन सफिशिएंट टाइम बिटवीन अकरेंस ऑफ द प्रोवोकेशन एंड द किलिंग। क्या जरूरत है कि जब प्रोवोकेशन हुआ और प्रोवोकेशन के इंपल्सन में कोई अपराध किया जा रहा कोई अपराध किया जा रहा है, तो यह देखना होगा कि प्रोवोकेशन और अपराध के बीच में क्या गैप है या नहीं है। प्रोवोकेशन और जो क्राइम है उसके बीच में एक रीजनेबल गैप है या नहीं है। अगर एक रीजनेबल गैप नहीं है तब वो मर्डर नहीं है, वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है। लेकिन अगर सफिशिएंट टाइम आपके पास है, अगर आप इतने देर में एक कॉमन प्रूडेंट मैन से ये माना जा सकता है कि उसको इतना समय मिला या ऐसे सर्कमस्टेंस इन बिटवीन आए कि वो अपराध की ओर जाने के बजाय पीछे हट सकता था, यानी रिवर्स कर सकता था। तो इस केस में क्या हुआ था? इस केस में हुआ ये कि ये के.एम. नानावटी साहब को जब पता चला, उनकी पत्नी ने कहा कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और इस बात से वो ऐसा उन्होंने प्ली लिया कि वो बहुत दुखी हुए और प्रोवोकेशन में आए। एक्चुअली वो उस समय प्रोवोकेशन में नहीं आए, वो अपनी पत्नी को माफ करते हैं। माफ करने के बाद अपनी वाइफ और अपने 3 बच्चों को एक सिनेमा हॉल में ले जाकर फिल्म देखने के लिए बैठा देते हैं, और वहां से वो निकलते हैं और जाते हैं अपने घर और अपनी सर्विस रिवॉल्वर लेते हैं और उसको लेकर प्रेम आहूजा, जो उनका फ्रेंड रहता है जिसके साथ उनकी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, उसके घर जाते हैं और वहां पर इन लोगों में बहस होती है। प्रेम आहूजा के द्वारा कुछ इनहेस्टी वर्ड्स का यूज किया जाता है, कुछ एब्यूजिंग वर्ड्स यूज होते हैं, कुछ इंसल्टिंग बातें होती हैं, और इसके बाद ये गोली मार देते हैं एज ही असर्टेड। अब यहां पर जूरी ने यही बात कही कि वो सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन में ये काम किया, और कोई भी पति अगर ऐसा है तो वो ऐसी बातों को सुनने के बाद बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी बात को लेकर चर्चा हुई। तो यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या वो सेल्फ कंट्रोल खोए थे। सेल्फ कंट्रोल जैसी कोई बात इसलिए नहीं मानी जाएगी क्योंकि तत्काल ये घटना नहीं हुई, प्री मेच्योर्ड प्लान है, प्री मेडिएटेड प्लान है। वो प्री प्लानिंग के तहत गए थे, नहीं तो अपनी पत्नी बच्चों को सिनेमा हॉल में क्यों छोड़ते और पिस्टल लेने क्यों जाते। दूसरी बात कि वो डायरेक्ट इमीडिएट इंपल्समेंट नहीं था प्रोवोकेशन का, क्योंकि वो उसके घर गए, उसके बाद उससे बहस किए, सारी जानकारी इनको थी ही, फिर भी जाकर उससे डिस्कस करते हैं। इवन डिस्कस करना बुरी बात नहीं है, गुस्सा करना भी बुरी बात नहीं थी, लेकिन पिस्टल लेकर आना, पत्नी और बच्चों को कहीं छोड़ना, और जब पत्नी ने ये सारी बातें बताई थी और मर्डर के बीच में काफी लंबा गैप था, देयर मस्ट नॉट हैव बीन सफिशिएंट टाइम बिटवीन अकरेंस ऑफ प्रोवोकेशन एंड द किलिंग। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको इस तरह से समझिए कि ऐसी सिचुएशन है कि आप उस एगोनी से, मेंटल एगोनी से बाहर नहीं आ पा रहे। वो जो आपको पेन है, वो जो आपका फ्रस्ट्रेशन है, वो जो आपका एंगर है, आपका प्रोवोकेशन है, आप उसके बाहर नहीं आ पा रहे। अगर आप कॉन्टिन्यूअसली उसमें हैं, ऐसे सर्कमस्टेंस, और ये एक कॉमन प्रूडेंट मैन समझ सकता है कि ऐसे सर्कमस्टेंस हो सकते हैं, तब अगर आप कोई अपराध करते हैं तब वो मामला इस सेक्शन के अंतर्गत आता है, अदरवाइज ये एक्सेप्शन नंबर 1 में नहीं आता है। पहली बात। दूसरी चीज कि यदि हम इस बात को इस तरह से देखें कि वो जो टाइम है वो कैसे आप काउंट करेंगे, कैसे आप मानेंगे कि ऐसा
उसको गैप नहीं मिला इन बातों का चिंतन करने का, वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट था, दुखी था, या जो भी बातें थी उसके साथ जो हुई, उसको जो पता चला इन सारे केसेस में खासतौर से। तो कहीं ना कहीं इसमें एक चीज और देखी जाती है, नॉट ओनली अ सर्कमस्टांसेस बिहाइंड द केस, ये देखा जाता है कि वो व्यक्ति पढ़ा लिखा कितना है, उसका सोशल स्टेटस क्या है, वो कितना प्रूडेंट है, वो किस तरह की जॉब करता है। इस मामले में नानावटी काफी पढ़े लिखे आदमी थे, नेवल ऑफिसर थे, और नानावटी ने बहुत सोच समझ के बात की। अगर नानावटी के अंदर सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन की बात आई थी तो वो अपनी पत्नी को भी मार सकते थे, लेकिन उन्होंने वो काम नहीं किया, बिकॉज ही लव वेरी मच हिज वाइफ। एक बात है, लेकिन दूसरी बात यह है कि उसके बाद आप पूरा प्लान करके, पूरा एक मूड बनाकर आप जाकर डिस्कस कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, ऑब्वियस है कि उसमें कुछ बातें निकल के आएंगी, और आप मीन्स के साथ जा रहे हैं, पिस्टल के साथ जा रहे हैं उस घटना को अंजाम देने। तो इस मामले में अल्टीमेटली ये बात निकल के आई कि नानावटी साहब ने अपराध किया है। तो क्या क्या लीगल प्रोविजन इन्वॉल्व था, मैंने पहले ही बताया। सेक्शन 300 defines murder and outline exceptions to this definition, including exception number 1. एक्सेप्शन नंबर 1 की बात आती है, जब हम एक्सेप्शन नंबर 1 की बात करते हैं तो उसके साथ एक चीज और हमको डिस्कस करना होता है। एक्सेप्शन नंबर 1 के भी एक्सेप्शंस हैं जिसको हम प्रोविजो के तौर पे बात करते हैं। तो सेक्शन 300 एक्सेप्शन नंबर 1, सडन ग्रेव प्रोवोकेशन में अगर कोई किलिंग होती है तो वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है। बट देयर आर 3 प्रोविजो is very important to decide whether it is a pure murder or a culpable homicide not amounting to murder. First, there must not have been sought by the accused. The provocation must not be must not have been sought by the accused. सेल्फ प्रोवोकेटेड एक्ट नहीं होना चाहिए। सेल्फ प्रोवोकेटेड, अपने आप ही गुस्सा आ रहा है, कोई ना कोई रीजन होना चाहिए प्रोवोकेशन का, और रीजनेबल ग्राउंड होने चाहिए, कोर्ट उसको माने कि हाँ ये प्रोवोकेशन का रीजन बन सकता है। तो फर्स्ट, प्रोवोकेशन मस्ट नॉट साउड बाय द अक्यूज्ड, फर्स्ट थिंग। द सेकंड इज वेरी नेसेसरी, not against the legal act. Provocation must not against the legal act. Provocation is not this exception is not provided to the accused in case of legal act. Provocation against legal act. अगर कोई लीगल एक्ट हो रहा है, कोई पुलिस ऑफिसर आपको पकड़ने आ रहा है, वारंट उसके पास है, तो आप प्रोवोक नहीं होंगे कि वो आपको पकड़ ले रहा है, या कोई जज आपके अगेंस्ट कोई जजमेंट प्रोनाउंस कर रहा है तो आप प्रोवोक नहीं हो जाएंगे, ठीक है। तो लीगल एक्ट के अगेंस्ट भी ये आपको एक्सेप्शन नंबर 1 प्राप्त नहीं है, ठीक है। और जो थर्ड है वो ये कहता है, प्रोविजन नंबर 3, नॉट अगेंस्ट द लॉफुल एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस, अगर किसी के पास ये राइट है, प्राइवेट डिफेंस वो लॉफुली एक्सरसाइज कर रहा है, जो उसको प्राप्त है, उसके अगेंस्ट प्रोवोकेशन का ये जो एक्सेप्शन का प्ली है वो नहीं लिया जा सकता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति आपकी नोज को पुल कर दे रहा है और आपको गुस्सा आ जाता है और इस वजह से आप उसको मार देते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने आपकी नाक खींची और आपने मुझे धक्का मारा, कि मैं ऐसा ना कर पाऊं, या कुछ लोगों की आदत होती है कि गाल नोच ले रहे हैं या कुछ भी XYZ, तो जैसे उस व्यक्ति ने अपना डिफेंस किया, उस डिफेंस के अगेंस्ट हमको प्रोवोकेशन नहीं फील होना चाहिए। अगर उस डिफेंस के अगेंस्ट हम प्रोवोकेशन में आ रहे हैं और प्रोवोकेशन के
उसमें इफेक्ट में हम किलिंग कर दे रहे हैं तो वो प्योर मर्डर है, वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का केस नहीं बनता। तो ये 3 एक्सेप्शंस भी इसके एक्सेप्शन के एक्सेप्शन में बार बार बोल रहा हूं, एक्चुअली इसको प्रोविजो बोलते हैं, लेकिन आप इस तरह से समझे तो आपको समझ में आएगा कि मर्डर का एक्सेप्शन नंबर 1 सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन से रिलेटेड मामला कहता है कि अगर इन सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन आप किसी का मर्डर करते हैं तो वो मर्डर नहीं कल्पेबल होमिसाइड होगा। और लेकिन यदि आप इस कंडीशन में ये प्ली ले रहे हैं, ये ग्राउंड ले रहे हैं, ये डिफेंस ले रहे हैं कि सडन ग्रेव प्रोवोकेशन में आप काम किए, इस कंडीशन में तो आप मर्डर कर रहे हैं, आप कल्पेबल होमिसाइड नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट है आपका सेल्फ साउटेड नहीं होना चाहिए प्रोवोकेशन, सेकंड लीगल एक्ट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, और तीसरा प्राइवेट डिफेंस का जब राइट कोई एक्सरसाइज करे उसके अगेंस्ट भी नहीं होना चाहिए। ये एक बात आ गई। फिर वही सारी बातें, जजमेंट क्या हेल्ड होता है। द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द कन्विक्शन ऑफ के एम नानावटी determining that the death of Prem Ahuja was not an accident but a premeditated act of murder, as we discussed. The court ruled that the exchange of abusing remarks जो प्रेम आहूजा की ओर से किया गया था, नानावटी ने आहूजा, prior to the shooting did not constitute grave and sudden provocation। जो भी abusing remarks थे, जो गाली गलौज या बहस हुई थी, इन हेस्टी स्टेटमेंट्स यूज किए गए, वो ग्रेव प्रोवोकेशन के लिए सफिशिएंट नहीं माने गए इस केस में। और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात मैं बार बार जो आपको कह रहा हूं कि क्राइम, प्रोवोकेशन एंड क्राइम, बिटवीन द प्रोवोकेशन एंड क्राइम जो टाइम है, क्या वो माना जाएगा कि सफिशिएंट टाइम था, या ये माना जाएगा कि वो इन अ सेम ट्रांजेक्शन था, इन अ सेम सीरीज था, मींस वो उस मेंटल एगोनी प्रेशर के इंपल्सन से बाहर नहीं आया था, वो प्रोवोकेशन में कंटिन्यू था, ऐसा भी देखना पड़ेगा। इस मामले में ये बाकायदा ये प्लान करके जा रहे हैं, इसलिए कोर्ट ने ये कहा कि ये प्रोवोकेशन हम नहीं मानेंगे। पहली बात तो आपने प्रीमेडिएटेड एक्ट किया है, दूसरी बात जो बातें अब्यूसिव रिमार्क्स आई थी वो प्रोवोकेशन में इसको नहीं माना गया, और तीसरी बात जो आई थी कि ज्यूरी ने जो एक्यूटल किया था वो रीजनेबल इंटरप्रिटेशन पे नहीं था। ज्यूरी तो एक सोशल क्या कहेंगे थॉट पर डिपेंड होकर उसने कहा कि कोई भी पति होगा तो ऐसे ही फील करेगा, तो ज्यूरी का जो भी था वो इमोशंस ज्यादा थे उसमें लीगल पॉइंट पे डिस्कशन नहीं हुआ। इसलिए हाई कोर्ट ने जो भी इवेल्युएट किया फैक्ट्स को और ज्यूरी के डिसीजन को जो भी किया इवेल्युएट, वो हाई कोर्ट ने बिल्कुल सही किया। सुप्रीम कोर्ट emphasizes that provocation must arise from a sudden event that would cause a reasonable person to lose self control। सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, जो इस केस में नहीं था, which was not applicable in this case। तो इस पे अब प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर लेते हैं। In so many time in our exams this question already asked। What was the significant legal concept discussed in KM Nanavati versus State of Maharashtra? You all know the answer, grave and sudden provocation, exception number 1 of section 300 IPC। okay, and in a main exam this type of question asked by you, evaluate the impact of Supreme Court decision in KM Nanavati versus State of Maharashtra on the interpretation of the provocation in criminal law। जो भी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, फर्स्टली इन मेंस
आप मेंस राइटिंग कैसे करेंगे इस बात को बहुत गंभीरता से देखेंगे। जब भी ये पूछेगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना पड़ेगा दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सेक्शन 300 एक्सेप्शन नंबर 1 ऑफ आईपीसी। अब बीएनएस हो गया है, जो भी सेक्शन हो जाता है 101 इन बीएनएस 101। ठीक, सबसे पहले आप ये बताएंगे, फिर आप बताएंगे अगर वो डायरेक्टली केस पूछ रहा है, जैसे अब ये केस पूछ रहा है, तो आप केस का ब्रीफ हिस्ट्री करेंगे। ठीक है, तो इस केस की आप दूसरी जो बात आएगी वो आएगी ब्रीफ हिस्ट्री। हिस्ट्री या फैक्ट, यू कैन से फैक्ट, ब्रीफली, वेरी कंसाइजली, ये आप बताएंगे। फिर उसके बाद बताएंगे, वो ढेर सारी ज्यूरी की बात नहीं बतानी है, फिर आप बताएंगे व्हाट हेल्ड। और जब आप हेल्ड बताएंगे 2 और 3 लाइंस में, उसी समय आप बता देंगे इसको एक्सप्लेन करेंगे। एक एक्सप्लेनेशन देंगे, बताएंगे कि क्या आप इसमें क्या लॉ है, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि प्री मीडिएशन में नहीं होना चाहिए और इम्पल्शमेंट में होना चाहिए, वो तमाम बातें जो आप लोगों ने चर्चा की वो आप बताएंगे। और वो बताने के बाद आप 1-2 केस और ले लेंगे इस मैटर को, जिसमें आप बताएंगे ना, टाइम की बात करेंगे, प्रोवोकेशन की बात करेंगे, तो 1-2 केस आप और ले लेंगे इवेल्युएट करने के लिए इसके साथ, जो किस रिस्पेक्ट में होगा, जो रियल में प्रोवोकेशन को मानने वाला केस होगा, रियल प्रोवोकेशन। ये बताएंगे। और अल्टीमेटली द लास्ट, इन लास्ट आप क्या बता देंगे कि अब नानावटी का जजमेंट जो है वो वॉज करेक्ट। एक लाइन में ऐसे आपके आंसर की फ्रेमिंग होगी। ठीक है, तो ये एक डिस्कशन होता है इस केस का। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।